السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ عادل آباد کانگریس پارٹی اسمبلی انچارج کندی سنواس ریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی نیشنل ہیرالڈ کیس میں ED کی جانب سے AICC کے سرکردہ قائدین سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے خلاف چارج شیٹ داخل کرنے کی سخت مذمت کرتی ہے۔ AICC اور TPCC کی ہدایت پر کانگریس کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد نے شہر مستقر میں ان کے کیمپ آفس سے ایک احتجاجی ریلی نکالی۔ انہوں نے مرکز کی BJP حکومت اور ED کے خلاف نعرے لگائے۔ انہوں نے مودی میں برہمی کا اظہار کیا کہ ED پرانے معاملے میں ان کے لیڈروں کو قصوروار کے طور پر پیش کرنے کی سازش کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹے مقدمات وہاں اثر و رسوخ ظاہر کرنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ان کا اتحاد بہار میں آئندہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرے۔ Entering FECFESCON into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching. ضلع سنگاریڈی پولیس نے ایک ایسے گینگ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے ضلع میں بنائے جانے والے نئے منصوبوں سے ایلومینیم کے برقی تاروں کو چوری کر رہا تھا۔ سداشیو پیٹ اور CCIS پولیس کی مشترکہ کارروائی میں 11 مقدمات کی نشاندہی کی گئی۔ 778 کلو گرام چوری شدہ ایلومینیم برقی تار جس کی مالیت تقریباً 2.2 لاکھ روپے بتائی گئی ہے ضبط کر لی گئی۔ جرم میں استعمال ہونے والی ٹرالی آٹو کو ضبط کیا گیا۔ 9 مجرموں کو پولیس کی تحویل میں لے لیا گیا اور 9 سیل فونز بھی ضبط کیے گئے۔ ضلع کے SP پریتیوش پنکج IPS نے اس ضمن میں تفصیلات کا انکشاف کیا۔ اس موقع پر ضلع پولیس آفس میں منعقدہ پریس میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ضلع SP نے کہا کہ سنتوش کمار پیشہ ڈاکٹر رہائش کوکٹ پلی حیدرآباد کی شکایت پر ایک شکایت درج کی گئی تھی کہ گاؤں میں ایک وینچر میں تقریباً 6000 میٹر برقی تاریں جن میں بجلی کے کھمبے تھے نامعلوم چور چوری کر گیا۔ میں جیدت متلا میں ایک سبھاس نگر کر کے کالونی ہے، تو اس میں سے 14 لوگ میں سے 11-12 لوگ اسی سبھاس نگر کالونی میں رہتا ہے، تو سب آس پاس ایک ہی گھر کے آس پاس رہتے ہیں۔ تو یہ جو مین بندہ ہری ہے جو کہ اڑیسہ کا رہنے والا ہے، ہری ارلیئر ڈیڈ دیس ٹائپ آف تھنگس ان UP، سو ہی ارنڈ اے لاٹ آف منی ان UP اینڈ آفٹر دیٹ ہی واز شفٹڈ ٹو سائبرآباد لمٹ اینڈ لیٹر ہی اسٹارٹڈ آل دیز تھنگس ود دا ہیلپ آف دیز پیپل۔ ساگر پوار بھی پہلے ادھر ہی رہتا تھا۔ اب ریاستی کانگریس پارٹی کی کال پر ضلع کانگریس پارٹی کی طرف سے NTR چوراہے پر نریندر مودی کا پتلا جلا کر مرکزی حکومت کی طرف سے کانگریس پارٹی کے سرکردہ قائدین سونیا گاندھی اور رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کے خلاف چارج شیٹ دائر کرنے کے غیر قانونی ED کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر ریاستی مہم کمیٹی کے رکن جاوید اکرم اور NSUI کے ضلع صدر وینو راجو نے کہا ہے کہ مودی جمہوری فیصلہ لے کر تمام اداروں کو کمزور کر کے مرکز میں حکومت کر رہے۔ اسی طرح اس نے عوام کو یہ کہہ کر دھوکہ دیا کہ وہ سالانہ 2 کروڑ نوکریاں دیں گے، کالا دھن باہر نکالیں گے اور ہر غریب کے کھاتے میں 15 لاکھ روپے جمع کرائیں گے اور آئین کو بدلنے کی سازش کر رہے۔ دہلی یونیورسٹی کے لکشمی بائی کالج میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا جہاں دہلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے صدر رونق کھتری نے کالج کی پرنسپل پریتیوشا وتسالہ کے دفتر کی دیواروں پر گائے کا گوبر مل دیا۔ یہ اقدام پرنسپل کی جانب سے کلاس رومز کی دیواروں پر گوبر لگانے کے رد عمل میں کیا گیا جسے انہوں نے گرمی سے بچاؤ کے لیے ایک تحقیقی تجربہ قرار دیا تھا۔ پرنسپل پریتیوشا وتسالہ نے حال ہی میں کلاس رومز کی دیواروں پر گوبر لگایا جس کی ویڈیو سوشل
सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उन्होंने इस अमल को एक तहकीकी मंसूबे का हिस्सा बताया जिसका मकसद रिवायती और कुदरती तरीकों से गर्मी को कम करना था। ये तजुर्बा कॉलेज की दूसरी मंजिल पर वाक़ पड़ता कैबिन क्लासरूम्स में किया गया था। रौनक खत्री ने इस इक़दाम पर एतराज़ करते हुए कहा है कि तलबा की रजामंदी के बगैर क्लासरूम्स में ऐसा तजुर्बा करना मुनासिब नहीं। उन्होंने प्रिंसिपल के दफ्तर की दीवारों पर गोबर लगाकर एहतजाज किया और कहा कि अगर तलबा को गोबर से लेपे हुए क्लासरूम्स में बैठना है तो प्रिंसिपल को भी अपने दफ्तर में यही माहौल इख्तियार करना चाहिए। रौनक खत्री ने सोशल मीडिया पर इस वाक़े की वीडियो शेयर की और तंज़िया अंदाज में लिखा, हमें यकीन है कि मैडम अब अपने दफ्तर से AC हटाकर तलबा को दे देंगी और कॉलेज को इस जदीद और कुदरती ठंडक वाले माहौल में चलाएंगी। साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया। नहीं, आप अपने घर पे कीजिए, आप अपने घर पे कीजिए। देखिए एक मिनट, आप वो रिसर्च अपने घर पे कीजिए। शैतान करे भाई, बुलाओ मनराज, आप जिसको बुलाना चाहो आप बुलाओ। मैडम के आज रूम में जो रिसर्च उन्होंने करी है वो रिसर्च यहाँ भी लागू होनी चाहिए। यहाँ क्यों लागू होगी? यहाँ होगी लागू, पूरी तरीके से लागू होगी। शैतान को बुलाओ ना, बुला लो जिसको बुलाना है। पानी डाल के इसका पूरा बनाओ, तसले में बना लो। तसले में बनाओ। अच्छा हो भाई। दिल्ली कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और सुल्तानपुर माजरा असम्बली हलके से 4 बार मुंतखब होने वाले साबिक रुकन असम्बली जय किशन का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की खबर से दिल्ली के सियासी, समाजी और मुकामी हलकों में गहरे रंज गम की लहर दौड़ गई। दिल्ली कांग्रेस के सदर समेत कई रहनुमाओं और कारकुनों ने उनकी वफात पर खराज अकीदत पेश किया और उनकी खिदमात को याद किया। जय किशन दिल्ली की सियासत में एक जाना पहचाना नाम थे। वो कांग्रेस के टिकट पर सुल्तानपुर माजरा से 4 बार असेंबली में पहुंचे। अपनी मुद्दत कार के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने हलके में तरक्याती कामों पर जोर दिया बल्कि अक़लियतों, दलितों और पसमानदा तबकात की आवाज को भी ऐवान में मौसर अंदाज में बुलंद किया। उनकी तकरीरें अक्सर समाजी इंसाफ, बराबरी और फलाही स्कीमों पर मरकूज होती जिसके सबब वो मुकामी अवाम के दरमियान खासे मकबूल थे। बांग्लादेश में शेख हसीना की बगावत के बाद इंतखाबात हुई हैं। शेख हसीना की अपोजिशन जमात BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भी बांग्लादेश में इंतखाबात में ताकत पर चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस पर तनकीद की। BNP के जनरल सेक्रेटरी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि अगर इंतखाबात ना हुए तो हालात बद से बदतर होंगे। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक फखरुल इस्लाम आलमगीर ने स्टेट गेस्ट हाउस जमना में चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। मुलाकात के बाद BNP ने यूनुस के इंतखाबी रोड मैप न होने पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि हम उनके चीफ एडवाइजर के तबसरों से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हैं। हमने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर दिसंबर तक इंतखाबात ना हुए तो मुल्क की सियासी और समाजी सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अबूरी रोक लगा दी जबकि उनके खिलाफ दर्ज FIR की मनसूखे से मुत्तल्लिक फैसला 3 घंटे से ज्यादा समाअत के बाद महफूज रख लिया गया। अदालत में समाअत के दौरान कुणाल कामरा के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIR को मनसूख किया जाए और तहकीकात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। वकील ने दलील दी कि ये मामला आइन के आर्टिकल 19(a) के तहत इजहार राय की आज़ादी से जुड़ा है जिसके तहत कोई जुर्म साबित नहीं होता। उनके मुताबिक रियासती मिशनरी का इस्तेमाल करके एक फनकार को डराने और दबाने की कोशिश की गई, इसलिए ये मामला एक नायाब जुमरे में आता है। गजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली हमलों में कम अज कम 19 फलस्तीनी हलाक हो गए। ये इतला गजा सिविल डिफेंस ने दी है। शहरी दिफा के तर्जुमान महमूद बासल ने बताया कि गजा शहर के शुमाल मशरिक में अल-फतफाह में हसूना खानदान के घर को निशाना बनाने वाले इसराइली फजाई हमले में बच्चों और ख्वातीन समेत 10 अफराद हलाक हुए। गजा पट्टी के शुमाल में जबालिया के इलाके में इसराइली फौज ने 3 अफराद को हलाक और दीगर को जख्मी कर दिया। गजा
पट्टी के जुनूबी इलाके खान यूनिस में इसराइली ड्रोन हमलों में 2 बच्चों समेत कम से कम 5 अफराद हलाक हुए। बासल ने कहा है कि एक इसराइली तैयारे ने वसत शहर नसीरात में बेघर लोगों में खुराक तकसीम करने वाले एक खैमे को निशाना बनाया, जिसमें एक फलस्तीनी हलाक हुआ। फलस्तीनी सिक्योरिटी जराये ने बताया कि सुबह से गजा सिटी के मशरकी इलाकों बैत हनून और शुमाली गजा पट्टी के बैत लाहिया इलाकों पर इसराइली तोपखाने की गोलाबारी जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल अपने फैसलों से सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने सदर का ओहदा संभालते ही बड़े पैमाने पर तब्दीली की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। हालांकि उनके फैसलों की बड़े पैमाने पर तनकीद भी की जा रही, लेकिन ट्रंप अपने कदम पीछे नहीं खींच रहे। इस कड़ी में ट्रंप हुकूमत ने कदम और आगे बढ़ते हुए मीडिया पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। दरअसल व्हाइट हाउस ने अपनी मीडिया पॉलिसी में तब्दीली कर दी। नई पॉलिसी में राइटर्स, ब्लूमबर्ग और एसोसिएटेड प्रेस एजेंसी बैनुल अक़वामी एजेंसियों को व्हाइट हाउस के प्रेस पोल से बाहर कर दिया गया। इन न्यूज एजेंसियों को अब व्हाइट हाउस में मुस्तकिल जगह नहीं मिलेगी। व्हाइट हाउस का प्रेस पोल करीब 10 मीडिया इदारों का एक ग्रुप होता है। इसमें सहाफी और फोटोग्राफर शामिल होते हैं। ये लोग सदर की हर छोटी बड़ी सरगर्मियों को कवर करते हैं। दूसरे मीडिया इदारे सदर से जुड़ी कवरेज के लिए प्रेस पोल में शामिल मीडिया इदारों पर मुनहसर रहते हैं। इस पॉलिसी में तब्दीली के बाद बैनुल अक़वामी मीडिया इदारों को अमेरिकी सदर तक पहुंचने में अब मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। Entering FECFESCON into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching, equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-the-art fine flaps and high-tech computer lab. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।